ये पिद्दी के शोरबा जैसा हार्ट लेकर क्रिमिनल केसेस की वकालत नहीं होगी। जाओ जाओ। ए जज मस्ट मेंटेन जुडिशियल एलूफनेस, मस्ट बी फेयरलेस एंड मस्ट नॉट मिंगल विद द पब्लिक। आने वाले समय में जुडिशरी तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी न्याय के लिए और संविधान के लिए खड़ी मिले। दुर्भाग्यवश कोर्ट सिस्टम जो है वह 10-20-25 लाख लोगों को रोजगार देने की एक जगह बन गई। कोई भी व्यक्ति न्याय नहीं खोजता है। मुझे मेरे वाला न्याय चाहिए, जो मैं खोजूं वह न्याय है। कोर्ट में जब वकील साहब कहते हैं जज साहब न्याय करने की कसम आपने खाई है, झूठ बोलने की कसम गवाह ने खाई है, मेरा काम तो खाली तबला बजाना है। कल तक आप वकील थे और आज जज हो गए। बस ट्रेनिंग की नाम चीज ही नहीं है यार। एक वकील जो है उसको अधिकार दिया गया है कि वह अपने क्लाइंट के लिए कितनी भी दूर जाकर कितना भी अगली आर्गुमेंट कर सकता है। जस्टिस की कोई एक डिफाइंड डेफिनेशन नहीं है, ये तो एक लिक्विड एस्पिरेशन है, इंडिविजुअल एस्पिरेशन है। कोर्ट है तभी वकील है और वकील है तभी कोर्ट। आई विल शो कि एट द एंड ऑफ लाइफ एक संतुष्ट जज कैसा जीवन जीता है। I am your host Gaurav Garg and we welcome all our viewers to our show Amazing Mentor. Today with us is Mr. Ramesh Kumar Rateria. He is former District and Session Judge, former Director of Bihar Judicial Academy and former Chairman of Commercial Tax Tribunal, Patna. He has done BCom and LLB and is practicing as an advocate since 1983. He joined as Additional District and Session Judge in 1997 at Patna. After that, he joined Principal Judge Family Court in 2005. Post that, he was appointed as Director of Bihar Judicial Academy in 2008-2009. After that, he was appointed as District Judge at Katihar in 2009-2011. His last appointment was as District and Session Judge at Kishanganj 2015-2016. He has heard, analysed, and adjudicated almost all the branches of law. He has heard, analysed, and adjudicated almost all the branches of law. He has tried civil and criminal as well as testamentary cases. He has undertaken all sort of counselling, mediation, negotiation, and referring of arbitration. He have attended several training courses at National Judicial Academy, Bhopal, and National Police Academy at Hyderabad. He was the member of Bihar Legal Services Authority, Patna, organized training programs for different layers of judicial officers, completed induction training for newly recruited judicial officers, a batch of 300 plus, conducted examination for recruitment of clerk and interview for HR for subordinate course, assigned duties, supervised performances of judicial officers, maintained relationship between member of bar and bench, various officers of government establishment, judiciary, high court and bank, dealt various banking issues at Lok Adalat. It's a pleasure to welcome Mr. Ramesh Kumar Rateria to our show Amazing Mentor. Welcome, sir. Thank you, Mr. Garg. It's feeling good to be with you. Tell us some of your memories from your childhood and how was your childhood? As far as my childhood is concerned, Mr. Garg, I can tell you one thing, that I have not so many sweet memories of my childhood. My childhood is full of jerks, jumps, jolts, and potholes. It's all tooth-biting struggle, and I have lost all the hopes around 1970s. But then I somehow maintained myself and grew again. And I grew as a sales tax practitioner in the year 1977, and that was the turning point of my life. I had no satisfactory business or anything helping me, but now that it is all a matter of past. So what about your educational background, schooling and higher education? I was born in Calcutta and I had my first year commerce up to that in Calcutta itself, and thereafter I shifted to Bihar in some extraordinary situation and completed my BCom and LLB from Magadh University, Bodh Gaya, Bihar. So as a child, what was your dream profession that मैं जब बड़ा होऊंगा तो ये बनूंगा?
You are very correct to ask me this question. In fact, when I was in 1976 or so, I had grown long beards up to my chest, and I managed the golden spectacles. No, I don't know, remember from where I managed, and I started giving lectures in English like anything, writing English, and economics was my important subject, very loving subject. But then in 1977, my father passed away, and still my dreams didn't pass away. I pursued my dreams, though it was very unnatural to pursue those dreams in or around that period. But once my mother told me that, I used to say that, okay, I will, मैं तुम सबको फांसी दे दूंगा, मैं तुमको सबको फांसी दे दूंगा। और 1977 में जब मेरा एक बहुत ही दुर्लभ परीक्षा फल हुआ, तो मैंने मदर से परमिशन मांगी कि मुझे जाने दिया जाए। उसी वक्त 1-2 महीने बाद मेरे पिताजी गुजरे थे, तो मदर ने कहा कि पिता को तो फांसी तुमने दे दिया, अब हमको भी फांसी दे दो और चले जाओ। और उसके बाद मैं बहुत निराश हुआ, मैंने वह करियर छोड़ दिया। पर क्योंकि लिखा हुआ था कि मुझे जज बनना है, तो फिर मैं बीकॉम करने के बाद सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर का लाइसेंस लिया। मैंने सेल्स टैक्स प्रैक्टिस की, लॉ की, और लॉ करने के बाद मैं 1983 में वकील हुआ। एक्चुअली सेल्स टैक्स की प्रैक्टिस के दौरान मुझे विश्वास हो गया कि टैक्स का जो लिटिगेंट है उसको अपने आप पर या अपने पैसों पर अधिक भरोसा होता है बनिस्बत की वकील पर। इसलिए मैंने टैक्स प्रैक्टिस का अपना करियर जो है ड्रॉप कर दिया। मैंने कहा नहीं, और मैं एडवर्सरियल फॉर्म ऑफ लिटिगेशन के लिए बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस में इनरोल हुआ। तो क्या कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ बीकॉम और एलएलबी के बीच में जिसमें आपको सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि भाई मेरे को एडवोकेट या लीगल प्रैक्टिस में जाना चाहिए? Yes, it is really that. In the year 1977, I had got exemplary success, a rare feat, but then that was gagged. I was gagged. But in order to keep my academics and argumentative skill alive, I had no option but to go for a career in law. That was the last option and final option, to keep my argumentative form alive. तो कॉलेज लाइफ कैसी रही आपकी? कोई नोटेरियस मूवमेंट जो आपने किया अपनी कॉलेज लाइफ में? इनफैक्ट एक खास तरह का इंसिडेंट मेरी कॉलेज लाइफ में हरदम हुआ कि जब भी मैं कॉलेज में क्लास में जाता था, तो टीचर्स जो हैं बहुत रिएक्ट करते थे, क्योंकि मैं उनसे बड़े स्क्वीजिंग क्वेश्चंस पूछता था, और वे लोग शायद उसके लिए तैयार नहीं होते थे। और मैं परीक्षा हो या किसी भी कारण कहीं भी हो, आई नेवर टुक रिकॉर्ड to any unfair practice, or unfair practice was very prevalent around, and when I didn't yield to those practice, professors and teachers always resisted me. In fact, at one point of time I took up a quarrel with a professor and gave him slack, and that created a huge uproar. DM came up to me, DM knew me from before, and that invigilator was changed. But then I was not a comfortable student for my teachers. I was not a comfortable. I always challenged them. तो कैरियर की शुरुआत जब आपने बीकॉम अपना पूरा कर लिया, तो कैरियर की शुरुआत फिर कहाँ से करी? करियर की शुरुआत मैंने बिहार के एक औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में कॉमर्शियल टैक्सेस प्रैक्टिशनर के रूप में, मैंने टैक्स प्रैक्टिशनर के रूप में इनरोल करवाया था। यह मेरे करियर की शुरुआत है, प्रोफेशनल करियर की शुरुआत है। तो आपका पहला दिन ऑफिस में कैसा रहा, और क्या पहला टास्क था जो आपको मिला करने के लिए? मेरे करियर की शुरुआत के पहले दिन के 3-4 चरण हो जाएंगे। पहला हो जाएगा टैक्स प्रैक्टिशनर के रूप में पहला दिन, दूसरा हो जाएगा वकील के रूप में पहला दिन, और तीसरा हो जाएगा जज के रूप में मेरा पहला दिन। ये तीनों अलग अलग हो जाएंगे, और तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। टैक्स प्रैक्टिशनर के रूप में पहला दिन मुझे याद है, मैंने कहीं से एक हल्के आसमानी रंग की सूट सिलाई थी, और वह पहनकर मैं ऑफिस में गया था। तो सेल्स टैक्स ऑफिस का जो चपरासी था, उसने मुझे पूछा, वेयर इज योर घंगरी गाउन, वेयर इज योर घंगरी। और जब मैं वकालत के पेशे में गया, तो मेरे जो सीनियर थे, दे एक्सक्यूज मी लाइक एनीथिंग, और उन लोगों के क्वेश्चंस जो हैं बड़े कुछ मतलब ही अजीब से थे, नॉन वेजिटेरियन लाइन्स पर थे। हाँ, they didn't relish it. They didn't relish my entry in the profession in the bar association, and as a judge, I was
really received well because I had topped the list. I have topped the list of Bihar Superior Judicial Services direct recruit from Bar, and hence I was taken on very high esteem as a judge. तो एडवोकेट बनने के बाद जैसे आपने बताया कि जो कुलीग्स थे वो इतना खुश नहीं थे आपकी एंट्री से, तो आपने ये सब जो चैलेंजेस थे वो कैसे ओवरकम किए? लाजमी सी बात है, तुमने बहुत ही अच्छी बात कही. You asked a very pertinent question. In fact, I remember an incident in the year perhaps 1987 or something like that. I was assisting my senior in a 302 case, and there was a defense witness to be examined by us. My senior got the chief done and moved to another court and said that loud, let you take care of. I said, okay, I will take care of. And then the additional prosecutor started questioning the witness, and that witness was accused also. He wanted to take contradictions from the statement recorded in the case diary. I objected. You cannot take it. Now, I being a very small fry in the whole district judiciary of Bihar setup, and he was a big fry. He didn't relish it. He challenged me and used some unparliamentary language also, to which I retorted. In any view, the matter was adjourned, and the judge was in my favor at the moment. When I was returning back, coming out of the court room, at least 10 to 12 persons with rifles and all arms surrounded me and challenged me like anything and said, "Oh, वकील साहब, चमको मत, चमकिए मत. आप आते हैं यहाँ कमाने के लिए और हम लोग आते हैं यहाँ गंवाने के लिए. आप आते हैं बाल बच्चों के लिए कमाने के लिए और हम लोग आते हैं यहाँ अपने बाप दादों का कमाया हुआ गंवाने के लिए." रियली स्पीकिंग, मुझे डर तो जरूर लगा होगा, पर मैंने उन लोगों को पीठ पर हाथ लगा, जाओ जाओ अपना काम करो. वकील जो है किसी का दुश्मन नहीं होता है. जो क्लाइंट है, हम क्लाइंट के इंटरेस्ट में बात करते हैं. यदि मैं आपका क्लाइंट का वकील हूँ तो आपकी तरह से बात करूँ. यह कहते कहते मैं अपनी सीट पर पहुंचा और ये बात जो है 4-4:30 बजे करीब की होगी. पूरे कचहरी में हवा की तरह फैल गई कि रतेरिया हैज बीन चैलेंज्ड बाय क्रिमिनल्स. मेरे सीनियर जो है काम निपटा कर टेबल पर आए, उनको भी पता लग गया होगा. उन्होंने पहले तो मुझे देखा कि ठीक ठाक है, पर जब देखा कि अंदर से डरा हुआ है तो उन्होंने दोनों हाथ ऊपर कर लिए और करीब चिल्ला कर कहा, ये पिद्दी के सोडबा जैसा हार्ट लेकर क्रिमिनल केसेस की वकालत नहीं होगी. जाओ जाओ बर्तन बेचो, वकालत कपड़ा बेचो. चला है क्रिमिनल केस का वकालत करने. और दैट वाज द पॉइंट वेयर आई वाज कंप्लीटली चेंज्ड विदिन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड. आई वाज कंप्लीटली चेंज्ड. और देन आज उन घटनाओं को करीब 35 साल हो गए. मुझे आज भी वो याद है. वह मेरे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था कि मैं किसी से भी कभी भी डरा नहीं. So apart from threatening incidences, are there any funny moment which happens in court? फनी मोमेंट्स तो हरदम होते हैं. कोर्ट लाइफ का यह पार्ट है, या कोर्ट क्राफ्ट का यह पार्ट है. इंटर से एडवोकेट्स पीयर्स के बीच में फनी मोमेंट्स होते हैं. जज और वकील के बीच में फनी मोमेंट्स होते हैं. जज और जज के बीच में फनी मोमेंट्स होते हैं. हाँ, और फनी मोमेंट तो अक्सर होते हैं. हाँ, और खासकर मैं जब वकालत ज्वाइन किया, when I was in bar, I didn't use the tea or any breakfast in the local kachahari or shop. I always got my own tiffin from my house, and I had my tea from my house. And in the tea time, in between the breakfast, 1:30 to 2, a few senior advocates would come up to me for Marwadi chai pilao, Marwadi chai pilao, Marwadi chai pilao. Because that quality of tea was not available in the whole district. उसी तरह मेरे घर का जो नाश्ता बनकर मेरे लिए आता था, वो अभी उन लोगों के लिए रेयर था. इसलिए बहुत फनी मोमेंट्स होता था. बाद में मैंने अपना चैम्बर किया. चैम्बर में भी मेरे सीनियर्स जो कि मेरे से दुगने एज के थे, 60, 70, 80 तक के एज के थे, वो आते थे. तो वह भी एक फनी मोमेंट ही होता था. हाँ, जब उनके मित्र, सीनियर्स के मित्र आपस में पूछते थे कि कहाँ जा रहे हो, तो वो कहते थे कि हाँ, रतेरिया की ऑफिस में जा रहे हैं. तो उनसे लोग कहते थे,
तो अपन अपने सीनियर के ऑफिस में जा रहे हो, तो ये होता था। फनी मोमेंट बहुत से थे, और खासकर इसलिए कि मैं बिहार के जिस ग्रामीण क्षेत्र में प्रैक्टिस करता था, वहाँ कास्ट इक्वेशंस बहुत ही अलाइन थे, बहुत रोरिंग थे, फ्रिक्शन बहुत तेज था। इन स्पाइट ऑफ दैट मैंने जो है एक पहचान बनाई, जिसके चलते मुझे काफी रेसिस्टेंस का सामना करना पड़ा। According to you, what are the good and bad legal practices? The worst legal practice, what I feel, is that the court proceedings are controlled by litigants and advocates. यदि एडवोकेट्स चाह जाएंगे कि इस केस को आगे नहीं बढ़ने देना है, या इस केस का ये पर्टिकुलर कोर्स लेना है, तो ये लोग वैसा ही करेंगे। कई बार तो दोनों पक्षों के एडवोकेट्स जो है आपस में अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं और कोर्ट प्रोसीडिंग को कंट्रोल करते हैं। मोरओवर, कोर्ट प्रैक्टिस का एक सबसे अजीब हिस्सा है, वह आप भी जानिएगा, ब्रीफ आए कहां से, ब्रीफ जाए कहां से। फ्रॉम वेयर इज द ब्रीफ? अल्टीमेटली फाइल, a brief, a litigation, a question, a quarrel, a dispute had to come up to the court, and then in the court it has come to some advocate. How that particular advocate gets the particular brief, it is a $1 million question. ये एक्चुअली ये सारा गेम इसी पर है। तो जहां पर ये डिस्प्यूट पैदा हुआ करते हैं, जहां पर जैसे इनकम टैक्स रेड हुई, इनकम टैक्स रेड जैसे ही होती है, उसके बाद इनकम टैक्स जितने भी प्रैक्टिशनर्स होते हैं, उनकी चिंता की बात ये होती है कि ये ब्रीफ किसको पड़ेगा, किसके पास जाएगा। तो इसमें एक पूरा का पूरा व्हाट आई सी, I'm candid. Perhaps there is a courtesy-based brokerage system. Perhaps you can understand what I am hinting at. That is the disappointing part, because a litigant is not allowed free access to the information across the spectrum. litigant के पास जानकारी भी नहीं है, उसको तो किसी ने कह दिया कि ये वकील साहब अच्छे हैं, ये वकील साहब अच्छे हैं, या फिर किसी ने कह दिया ये वकील साहब हाकिम को मैनेज कर लेंगे, जज साहब को मैनेज कर लेंगे, वो उसी पर चला गया, जबकि वो ब्लाइंड है बेचारा, वो इनोसेंट है। और मजे की बात ये है, 99% केसेस में हाकिम भी ब्लाइंड है, 99% केसेस में हाकिम भी ब्लाइंड है। बट द फोर्सेस इन द वकालत खाना बार एसोसिएशन, especially the ground level forces, they are playing havoc and disappointed. So, as a chairman of Commercial Taxes Tribunal, Patna, what were your roles and responsibilities? In fact, tax adjudication is a quasi-judicial function wherein tax officials decide the quantum of tax payable by the SSC, and they are the own departmental officers. Hence, there is very little scope of any judicial application of mine. Then, at the top of the entire assessment proceeding, there is a tribunal that is headed by a judicial judge, judicial mind, and I, as a judicial officer of District&SessionJudge super selection grade, capped the tribunal, topped the tribunal, and heard all the matters within state of Bihar, and mine was the last court of fact, and I heard, adjudicated whether there are procedural lapses, whether the facts have been distorted, have not been truly assessed, ascertained, and whether facts are unduly inflated by either of the parties. That I did it, and I did it religiously. I'm happy that I did it fearlessly. So we have discussed the quality of good and bad legal practice. So what, according to you, are good qualities of a judge? As far as quality of judge is concerned, I must say that a judge must maintain judicial aloofness, must be fearless, and must not mingle with the public. He must have knowledge of the law. But the whole thing and most important thing is a judge must hear very, very patiently the arguments of parties. At times, we have come across circumstances where the advocate started very poorly. We were almost going to close the arguments, but then all of a sudden a very good piece of argument came from the bar, and argument changed the whole decision. Hence, every judge must hear very patiently, and a judge must believe in the forces of bar,
although there are risks, although there is something hazy in the bar nowadays, still bar is very helpful institution and can help the judge in a real manner in a journey for justice. So any verdict which you have given in your professional journey and you are not able to sleep properly before that verdict? As far as my career as a judge is concerned, I don't think whether you know or not, a judge is a judge only in law, and hence he must confine himself to the jurisdiction he is bestowed with, what he is authorized to do, and not do anything beyond that jurisdiction or beyond that authority. So a judge is not entitled to decide as per his own conscience. Even if a judge is not satisfied with the quality of evidences produced, he is not satisfied with the quality of witnesses produced, even if a judge is not satisfied with the quality of advocacy of the advocate concerned and feels that there can be better wage, a judge cannot suggest the party to choose either this way or that way. He has to shut his mouth and even not allow his reaction there to be played out by the parties. And hence, to my mind, so many times I felt that I am unable to do real justice. But at times, though there were materials, very sparse materials on the record, but through my own legal acumen and with the help of legal pronouncements by Supreme Court and others, I traveled a new path and succeeded in securing justice for the parties. So any case you would like to refer in which the judgment was most difficult to decide? I was posted in Begusarai, and there a section 302 murder case came up to me, and in that case the son of deceased lodged an FIR with the police that dacoits came to my house and killed my father. I fled away. I could not identify the dacoits. Later on, police investigated the case and found that the story is false. In fact, this is the son who killed his father in order that he may get government job on compassionate ground, as his father was a government employee. Now when the trial began before me, the wife of the deceased, that is the mother of the accused, testified that yes, this son of mine killed my husband. But after 2 days, she said, no, there was complete dark. I could not identify the person who killed. Again, one of the bhabi, इसी एक्यूज की भाभी भी आई, उसने भी 1-1.5 दिन तक सारी बातें बताई और दूसरे दिन आकर उसने वो भी कह दी कि नहीं मैं तो भाग गई थी, मैंने तो कुछ देखा ही नहीं, मैं कुछ देख ही नहीं सकी। 8-10 और भी वकील गवाह आए, उन सब ने कहा कि अमुक व्यक्ति की, हमारे गांव में अमुक व्यक्ति की हत्या हुई है, पर कैसे हुई मैं नहीं जानता। आईओ आया, उसने बता दिया कि ऐसे ऐसे हुआ, डॉक्टर आया, उसने बता दिया ऐसे ऐसे हुआ। और जब केस फाइनल हियरिंग पर आया तो वकील साहब आए लहराते हुए और बोले कि सर ये तो नो एविडेंस का केस है, किसी ने प्रोसिक्यूशन को स्टोरी को सपोर्ट ही नहीं किया, आप इसको एक्यूज को रिहा कर दो। हमने कहा वकील साहब आपकी बात तो सही है और मैंने सुन लिया है, मैं जजमेंट, और मैंने उस एक्यूज से पूछा कि भैया FIR तो तुम ही ने की थी ना? उसने कहा कि हाँ, तुम ही ने कहा था ना कि मैं वहीं पर था जिस वक्त मारा गया। हाँ, हम तो यह बात तो प्रमाणित हो गई कि एट द टाइम ऑफ डेथ डिसीज जो है इस एक्यूज के साथ था। अब उसका कहना है कि डकैतों ने मारा। क्या डकैत वहां थे? यदि डकैत होंगे तब ना उसको मारेगा। तो मैंने देखा कि जितने भी विटनेसेस आए थे उनमें से किसी ने भी डकैती का सपोर्ट नहीं किया। पुलिस ने नहीं बताया, पुलिस ने कहा कि नहीं डकैती का कोई प्रमाण नहीं मिला। हाँ, तो मैंने निर्णय लिया कि नहीं, जब डकैती का कोई प्रमाण नहीं है तो उसको कोई दूसरा तो मारने आवेगा नहीं, और निश्चित रूप से यह व्यक्ति मृतक के साथ है, इसलिए ये कहानी जो है सो प्रोबेबल लगती है। अब खासकर अब ये कि विटनेस है या नहीं है, तो कम से कम मेरे सामने मृतक की वाइफ और मृतक की एक बहू सामने थी जो कम से कम हाफ ट्रूथ तो बोल कर गई। ये सही है कि लेटर ऑन वो हॉस्टाइल हो गई, तो मैंने कहा कि हो सकता है कि लेटर ऑन उसके दिमाग में आया होगा
कि मेरा हस्बैंड तो मर ही गया, यदि मैं गवाही दूंगा तो मेरा बेटा भी मर ही जाएगा या हो जाएगा। तो मैंने डिसाइड किया कि जस्टिस यही कहता है कि मैं इसकी गवाही का वह हिस्सा मानूं जो कि एक्यूज को हत्या करते हुए देखा कहता है। और इस तरह मैंने उसको कहा। तो यह मेरा जजमेंट जो है उस वक्त बिहार के सारे अखबारों में चर्चित जजमेंट हुआ था और इट वाज वेरी डिफिकल्ट जजमेंट। और लोगों ने कहा कि भाई ये इस तरह से आई रिमेम्बर दैट केस, इट वाज सम ठाकुर इन बेगूसराय। So according to you, what or how would you define power, and how would you explain the saying, with great power comes the great responsibilities? Power is something where you have to go unvoluntarily, creepingly. आपको घुटनों के बल भी रेंगते हुए जाना पड़े, वह दरवाजा, वह पावर है। एक बार अमर सिंह जी से पूछा गया कि आप तो अच्छी बिजनेस है, सब कुछ है, फिर क्यों पॉलिटिक्स में आए हैं? बोला कि मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ पावर के लिए। बोला पावर किसे कहते हैं? बोला पावर वह जगह है जहाँ पर आप घुटनों के बल सरकते सरकते जाने के लिए विवश होते हैं। You don't have option. Power वही है। So how much do you think legal education and legal awareness have evolved over the past couple of decades? And what do you find as the biggest loophole in the contemporary legal education system? Since the English era, English empirical authorities didn't want to educate Indians about laws. They wanted to keep the local natives blind about law and legal provision. That was the reason they enacted a provision that once something is registered, something is published in the Gazette, we will presume that everybody knows the law. Though in practice, 99.999%, even the judges and the officers of native India didn't know the law. Legal education was never the purpose of colonial system. The Britishers set up this system not for justice to the natives, but for the ends of their own colonial interest. It was never for the native people. And that's why the top brass of the judicial system were always the imported gentlemen, the white gentlemen, who always looked down upon the native brains. And alas, even after independence, we did not change it. The law schools around us practically only distributed certificates of law degree. There was no database study of legal infrastructure or decisions, and no attempt was made to spread legal knowledge. You see, legal knowledge is something else and legal awareness is something else. You may know law. We all know that overcrowding, overspeeding is illegal. But do we really adhere to it? Why? Because we are not conscious of it. We are not willing to. That is the difference. That is the difference. And I think even our 1947, there has not been, or there has been constable training colleges since 1986 or 87 or 1975. Constable training college. Military academies were there and civil servants training academies were there, but there was nothing like judge training academy. Oh, don't you feel frustrated when you see that your case is being decided by an untrained judge who has never been a judge before and has never seen or never been taught the skills of training? You yourself as an educated gentleman, you have seen so many legal books around. Yes, whether you have seen legal books, have you seen any judicial book? Have you seen any judicial literature? The skill of a tracer, compounder is not the skill of a doctor. The skill or knowledge that is required for a clinical or medicine specialist is of no use for a surgeon, is it? Then do you have any special book for judges? The same book is being read by advocate, the same book is being read by quack, and the same book is read by judge. What is this? And you see, judges act according to law. Okay, of course, there has been phenomenal change in the whole scenario in the last 20 years.
a few national universities have been established in whole of the country. Now there are National Judicial Academies and State Judicial Academies. Judges are being trained. The judicial view is being standardized. Many young boys, brains like you and your good selves are trying to create a database for judicial pronouncements. And I think days ahead, we will be having a standard judging and standard judicial literature for training. So what is the procedure of becoming a judge then? It is very strange. In India, judges come from the only pool, that is lawyer's pool. It means only a person having a law degree can be judge. But to my mind, judging is never knowledge of law itself. Judging is a skill. Even a child judges, even a boy judges, even a juvenile judges, even an illiterate judges. What is good for me, what is bad for me. Judge should be having judge-like mind. Judge-like mind means free from prejudices and just for justice. And what is justice? Justice is only that keeps the society right, standing right. Just stick. You can stand it. This is justice. And for that, a law degree is not. At times, there can be more injustice through law, and there can be more justice without law. But so far as the question is concerned, how I can become a judge, at the present scenario, the formal situation is you must possess a degree in law, sit in some competitive exam, and if you are among the top slots, you can become a magistrate and then become a district judge, and still then you can become a high court judge. Another is when you are practicing in courts, judges do watch your acumen, judges do watch and analyze your impartiality, competence, and then one fine day, they whisper among themselves that this man is better and different from the lot, and he can be made a judge. And then they call you and ask whether you are ready to be considered as a judge. And if you can give consent, then they refer your name to be considered as a judge. And then ultimately and finally, the government decides whether he can be made a high court judge or not. And otherwise, the lower judiciary, that is district judiciary judges, come through public service commission, through competitive exams. So as we have talked about the lawmakers, the MP and MLAs, so what do you believe that the institution of judiciary today is capable of resisting political and administrative pressure? 125%. We have the best of judiciary in the world. But then that claim the mighty Keswanand Bharati verdict of 13 judges, and that 13 judges bench decided and declared that you parliament, you can have the power to amend the constitution, you can amend each and every part of the constitution, but you cannot change the basic feature of the constitution. This was the greatest ever contribution of Indian judiciary in the world jurisprudence. I say that judgment has been quoted around the globe for so many years. It is a very, very long judgment, but that holds good till now. And I think our judiciary is competent enough to withstand the pressure. And you see, the pressure coming from both the sides have to be not only from the power that appears on the surface. There may be some power within the system and compels the judiciary to go against the government. But no, to be against the government is not the job of judiciary. After all, कुछ तो बात रही होगी कि इतना जबरदस्त राम मंदिर का इशू जो है इस जुडिशरी ने डिसाइड कर दिया और कहीं एक पत्ता नहीं टोला. क्यों? क्या जुडिशरी के पास बंदूक थी, राइफल थी, बम के गोले थे, एटम बम था? नहीं ना था. था. तब एक न्यायाधीश केवल आत्मा के बल पर बोलता है, एक न्यायाधीश केवल अपने आत्मविश्वास पर चलता है. वह अपराधी
जिसको पकड़ने के लिए सैकड़ों की संख्या में सीआरपीएफ वाले लोग लगे रहते हैं, पुलिस वाले लगे रहते हैं, बख्तरबंद गाड़ियां लगी रहती हैं, उस व्यक्ति को जो कि पूरे गांव और इलाके में टेरर होता है, उसको आंख के सामने खड़ा कर एक जज उसके मुंह पर बोलता है, ऐ फलाने, मैं तुम्हें हत्या का दोषी पाता हूं और आदेश देता हूं कि तुम्हें फांसी के फंदे से तब तक लटका दिया जाएगा जब तक कि तुम मर नहीं जाते हो। और उसके बाद वह जज पैदल उतरता है और बिना किसी एस्कॉर्ट के अपने क्वार्टर तक जाता है। किस बलबूते पर? इतने बड़े जजमेंट्स हुए। मैं पटना में पोस्टेड था। उस वक्त के माननीय मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी चारा घोटाला केस में सरेंडर करने के लिए आ रहे थे और मैं समझता हूँ कि कम से कम 2-4 किलोमीटर शहर की सारी सड़कों पर लालू प्रसाद जी के समर्थक भरे हुए थे और लालू प्रसाद जी एक जज के सामने जाकर खड़े हुए। जज साहब ने उनकी बातें सुनी और उन्हें जेल भेजने का आदेश पारित कर दिया। किस बलबूते पर? क्या आप समझते हो कि जुडिशरी इतनी कमजोर है? आपको डर क्यों हो गया जुडिशरी इतनी कमजोर है? मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ, आने वाले समय में जुडिशरी तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी न्याय के लिए और संविधान के लिए खड़ी मिले। हम लोग न हिंदू होते हैं, न मुसलमान होते हैं, न पुरुष होते हैं, न स्त्री होते हैं। हम लोग जज हैं और केवल संविधान ही हमारा धर्म है। संविधानवादी जज, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट जज, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज आवर रिलीजन। तो इसी के ऊपर दूसरा सवाल पूछता हूँ मैं। जैसे आपने बोला कि हमारा कानून बहुत ज्यादा मजबूत है, इंडिया का खास तौर से। कानून मजबूत है या नहीं मैं नहीं जानता। मैं कानून मजबूत है नहीं, मैं जुडिशरी के बारे में जानता हूँ कि वो इंडिया में तमाम परिस्थितियों के बाद भी जुडिशरी बहुत ही अच्छा काम करता है। तो फिर ये परसेप्शन क्यों है पब्लिक में कि जो जजमेंट है या कानून है, आपकी लैंग्वेज में बोले, जो जजमेंट है वो खाली अमीरों के लिए, गरीबों के लिए नहीं? ऐसा है कि दुर्भाग्यवश कोर्ट सिस्टम जो है वह 10-20-25 लाख लोगों को रोजगार देने की एक जगह बन गई। दुर्भाग्यवश हम जब कोर्ट में जाते हैं तो हम अपने वाला न्याय खोजते हैं। मुझे जो चाहिए वही न्याय है, न्याय नहीं खोजता मैं। मुझे यदि कोई कह दे कि भाई तुम्हारे साथ न्याय होगा, अरे बाप रे बाप, पूरा घर रोने लगेगा, क्योंकि पूरे घर को पता है कि हमने क्या क्या कर रखा है। और न्याय होगा मतलब हमने गलत काम किया है तो दंड मिलेगा। न्याय तो मुझे मेरे वाला चाहिए कि कोई आकर मुझे रिहा कर देवे। मैंने 10,000 लाख 10 करोड़ 100 करोड़ इनकम टैक्स चोरी किया है और यदि कोई आपको कह देवे कि भाई आपके साथ न्याय होगा, तो न्याय तो यही है कि तुमने चोरी किया है तो तुमको टैक्स भी देना पड़ेगा और टैक्स देना पड़ेगा, उसके साथ पेनल्टी भी देनी चाहिए क्योंकि तुमने देश के साथ धोखा किया है। न्याय तो यही नहीं करता है। और देखिए आप क्या घबराहट हो जाती है, क्योंकि वह कोई भी व्यक्ति न्याय नहीं खोजता है। मुझे मेरे वाला न्याय चाहिए, जो मैं खोजूं वह न्याय है। तो ऐसे जहां पर इस तरह से स्वार्थ वाली जनता होगी तो जनता के परसेप्शन तो गलत होगा ही ना। आपको बताऊं मिस्टर गर्ग, देश की जुडिशरी का 95% एनर्जी रिसोर्सेस केवल सच का पता लगाने में लग जाता है, जबकि सच का पता लगाने का काम जुडिशरी का नहीं होता। सच का पता लगाने का काम पुलिस वाले का है, सच का पता लगाने का काम, इन्वेस्टिगेशन करने का काम ईडी का है, सीबीआई का है। पर यहाँ स्थिति क्या है, कोर्ट में जो भी आदमी इंटर करता है वह 95% झूठ के साथ इंटर करता है। झूठ जो है यहाँ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो गया है और झूठ बोलने से पूरे देश की 99% जनता को कोई परहेज नहीं है। और ऐसी जनता के परसेप्शन की बात करते हो मिस्टर गर्ग, या जज बनकर सोचना कि उसको कितनी तकलीफ होती होगी। पूरे रिकॉर्ड में हजारों पन्ने का रिकॉर्ड है, उसमें सच खोजना कितना मुश्किल होता होगा। कोर्ट में जब वकील साहब कहते हैं जज साहब न्याय करने की कसम आपने खाई है, झूठ बोलने की कसम गवाह ने खाई है, मेरा काम तो खाली तबला बजाना है। परसेप्शन की बात करवाते हो यार। एक ऐसा आदमी जो खुद फेयर नहीं है, there goes a dictum, one who comes to court must come with clean hands। क्या वास्तव में एक भी व्यक्ति क्लीन हैंड्स के साथ आता है? आपका क्या अनुभव बोलता है?
तो मेरा अनुभव तो ये बोलता है कि जो सच्चा व्यक्ति है वो कानून से बहुत दूर भागता है, नहीं, डर और टाइम की वजह से। नहीं 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 नहीं, डर और वो जो है इसलिए भागता है कि मेरी सच। एक केस था बड़ा अच्छा, मैं एक जगह पोस्टेड था एज ए डिस्ट्रिक्ट जज। उसी डिस्ट्रिक्ट में एक दूर के स्थान में मेरे रिलेटिव्स के यहाँ हर साल 2 साल पर डकैती हो जाया करती थी। एक दिन मैं रात में करीब सोया हुआ था, उसी वक्त मेरे पास खबर आई कि उसी दूर के रिलेटिव के यहाँ फिर डकैती हो गई। मैंने एसपी को फोन किया, अरे भाई सुना कि उसके यहाँ फिर डकैती हो गई? हाँ सुना है, हम भी देखते हैं। आधे घंटे बाद एसपी साहब का फोन आया कि हम लोगों ने चोर को पकड़ लिया है और उसके पास, डकैत के पास को पकड़ लिया है, उसके पास कई किलो सोना चांदी का जेवर मिला है और 7 करोड़ रुपए मिले हैं। और मालूम है जिसके यहाँ डकैती हुई वो कहता है कि डकैती तो हुई है पर 7,000 रुपया खाली डकैती हुई, डकैत केवल 7,000 रुपये लेंगे। कोर्ट से इसलिए बचते हैं कि मेरी सच्चाई सामने आ जाएगी। कोर्ट से इसलिए बचते हैं कि हमारे और आपके सबके पास छिपाने के लिए 99% चीजें हैं, बताने के लिए 1% नहीं। जिसको आपने कहा ना लॉ अबाइडिंग सिटीजन, जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है वह अधिक छिपाए हुए है। जाकर देखिए रांची के जंगलों में आदिवासियों के बीच पूरी की पूरी पीढ़ी ऐसी है, पूरी की पीढ़ी आदिवासियों के जंगल बीच है जो व्हाट इज झूठ क्या होता है जानता ही नहीं है। आज भी झूठ क्या होता है जानता ही नहीं है। अपने परिवार की, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को यदि मार दिया तो वह मार कर उसकी खोपड़ी को जो है हाथ में लटकाए हुए और एक हाथ में कुल्हाड़ी या कुदाल या जो भी जिसे काटा है शार्प एज वेपन, उसको लेकर जाकर थाने में पहुंच जाता है कि हम मार दे लिए। आप उसको कहते हैं वो जंगली नहीं है, वह है असली लॉ अबाइडिंग, जो झूठ बोलना नहीं जानता है। असली वह है। आपने जो कहा ना वह नहीं है, वह तो कनिंग है जो केवल अपने वाला, मुझे जो रुचि दे, मुझे जो सेटिस्फाई कर दे वह लॉ बने, तब तो बात दिक्कत हो जाए। जब आपने इंडक्शन ट्रेनिंग न्यूली अपॉइंटेड रिक्रूटिंग जुडिशियल ऑफिसर्स की तो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? मैंने जब इंडक्शन ट्रेनिंग की और जुडिशियल ऑफिसर्स को देखा तो मन ही मन सोच रहा था कि ये कितने हाई आइडियल्स के साथ इंटर कर रहे हैं और इन हाउस आने के बाद ये धीरे धीरे टिमिड हो जाएंगे। इन्हें जो है केवल सीनियर्स के लिए उठक बैठक करना सिखा दिया जाएगा और मतलब कि इन्हें जो है मिनिमम स्तर पर काम करने के लिए कहा जाएगा। They cannot act the full of their कैपेसिटी, दैट इज दी अनकहा अनडिक्लेयर्ड गाइडलाइन है। यदि सभी लोग दिन भर में 5 गवाह करते हैं और 1 जजमेंट देते हैं और यदि किसी ने 15 गवाह और 5 जजमेंट कर दिए तो सारा का सारा जजशिप और सारे का सारा सिस्टम उसका दुश्मन हो जाए। क्योंकि मुकदमे जो हैं वे वकीलों की रोजी रोटी से जुड़े हुए और वकील जो है मुकदमों के निपटारे से खुश नहीं होते। वे लोग अपने यहाँ मुकदमे डिस्पोजल नहीं होते हैं, खाली उनका प्रमोशन होता है। मुकदमों का प्रमोशन समझ गया नहीं, पहले जो है वो इन्वेस्टिगेशन स्टेज में होता है, फिर ट्रायल स्टेज में होता है, ट्रायल कंक्लूड हुआ तो एपीलेट स्टेज में होता है, फिर हुआ तो सेकेंड अपील स्टेज में होता है, उसके बाद फिर हुआ रिमांड होगा और फिर वही प्रोसेस चलता रहे। मुकदमे जो हैं वो नहीं। और इसलिए आपने कहा कि इंडक्शन ट्रेनिंग में, तो मैंने इंडक्शन ट्रेनिंग में एक और चीज बड़ी महसूस की। इंडक्शन ट्रेनिंग मतलब नए होने वाले जजेज को ट्रेनिंग देना, सही है ना? तो हु विल ट्रेन द जजेज? वेयर इज द ट्रेनर? कहाँ से लावे हम लोग ट्रेनर? बोलो भाई। डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट। और हु विल ट्रेन द ट्रेनर? कभी सोचा है आपने? अभी आप देखा भारत में राफेल आया, आपको मालूम है कि उस राफेल के लिए सैकड़ों ऑफिसर्स की ट्रेनिंग हुई और वे अब राफेल उड़ा रहे हैं। दैट इज द पर्पस। आपने देखा डिस्टर्बेंस मैनेजमेंट, मॉब मैनेजमेंट के लिए एक पुलिस एकेडमी के पास एक मॉड्यूल है, ट्रेनिंग मॉड्यूल है। कभी आपने जानने की कोशिश की कि क्या हिंदुस्तान में जुडिशरी वालों के लिए कोई ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया गया है या नहीं? कभी पूछा? कभी आपने जानना चाहा कि
ट्रेनर्स के लिए कोई ट्रेनर्स हैंडबुक है, ऑडिटर्स के लिए ऑडिटर्स हैंडबुक होती है, मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग बुक्स होती हैं, फायर सर्विसेज वालों के लिए फायर सर्विसेज की मैनुअल होती है, डॉक्टर्स के लिए डॉक्टर्स मैनुअल होती है। क्या आपने कभी जजेस के लिए भी कोई ट्रेनिंग मैनुअल खोजा है या खोज तो लेना? इंडिया में तो नहीं है। यहाँ तो मतलब कि कल तक आप वकील थे और आज जज हो गए, बस ट्रेनिंग की नाम चीज ही नहीं है यार। और ट्रेनिंग को जज बनने के लिए जजिंग इंस्टिंक्ट चाहिए, वकील वाले आर्गुमेंट चाहिए। आर्गुमेंट तो करने के लिए वकील है। बिल्कुल सर, मुझे अच्छा लगा कि कम से कम आपने इस क्वेश्चन को उठाया और मैं उम्मीद करूंगा यू विल कैरी दिस क्वेरी. I will carry this query. Yes, your next question, please. Yes. So, how was your experience as additional district and session judge in 1997 at Patna? 1997, when I joined the bench as additional district judge, I heard that civil cases are not receiving prompt attention of the judges. Civil cases. I took up all those cases very promptly, and the bar cooperated like anything. I insisted the bar that if you want to get your cases disposed of, please prepare written arguments, exchange it between yourselves, and then file it on the record. I will go through those written arguments and then fix a day to hear you people, and wherever I will have any difficulty, I will put questions to you and you will answer it. And you so know this activity got very high appreciation from the bar. I got very, very good cooperation from the bar, and it was really good, very nice. Patna is a very good bar where you can learn so many things. So Patna has a judgeship with so many jurisdictions, so many acts, and the advocates of Patna are really decent, and advocates bear even the nonsense. Advocates are such a fine lot that they won't react until unless it is unbearable. They are concerned with only one thing, that whether the judge is hearing them or not, whether the judge is hearing it or not. They don't interfere into the judgment. They know judgment is a part of judge. It is discretion of judge. It is within the jurisdiction of judge. But then they want that they should be heard. And they want one more thing, that if you are hearing me, please, Mr. Judge, incorporate my arguments in your judgment. Answer my arguments this way or that. And it's really very good, very nice. So, आपके हिसाब से एक एडवोकेट और एक जज में क्या डिफरेंसेस और क्या सिमिलैरिटीज है? एक जज जो है वह समाज को देखता है, एक जज जो है वह जो बोलता है, एक जज जो अनाउंसमेंट करता है, जो डिक्लेयर करता है, वह पूरे समाज को ओपनली करता है। एक वकील जो है उसको अधिकार दिया गया है कि वह अपने क्लाइंट के लिए कितनी भी दूर जाकर कितना भी अगली आर्गुमेंट कर सकता है। एक वकील को इंदिरा गांधी के हत्यारे के लिए भी आर्ग्यू करने का अधिकार है। आपको याद है राम जेठमलानी ने इंदिरा गांधी के हत्यारे के लिए बहस की, और बहस कंक्लूड करने के बाद वे राज्यसभा में आकर बैठ गए, और राजीव गांधी को यह बात बुरी लगी। राजीव गांधी ने कुछ अनप्लेजेंट वर्ड्स बोल दिए थे, तो राम जेठमलानी जी ने कहा कि आई डोंट माइंड हिज रिएक्शन। उसे नहीं पता है कि वकालत क्या होती है, वकील क्या होता है। आफ्टर ऑल ही इज पार्टी, उनका आफ्टर ऑल ही इज ए पार्टी। इसलिए वकील को कानून ने, द सोसाइटी हैज गिवन हिम द लिबर्टी टू स्टैंड फॉर इंडिविजुअल राइट्स। मालूम है मिस्टर गर्ग, व्हाट इज जस्टिस? लिटिगेंट की आंखों में जो दिखता है वह जस्टिस है। उसे मिलेगा कि नहीं वो नहीं जानता। 4 लिटिगेंट है, एक ही केस में है, चारों की आंखों में जस्टिस का शेप, साइज, वॉल्यूम, कलर सब अलग अलग। अब इसको जज को देखना है कि एज पर लॉ इनमें से कौन सा जस्टिस डिलीवरेबल है और कौन नहीं डिलीवरेबल है, कौन सा कितना दिया जा सकता है, कितना नहीं दिया जाता है। पर हाँ, जस्टिस की कोई एक डिफाइंड डिफिनीशन नहीं है। ये तो एक लिक्विड एस्पिरेशन है, इंडिविजुअल एस्पिरेशन है, जो कि लिटिगेंट की आंखों में तैर रहा है, या समाज की आंखों में तैर रहा है, या रोहिंग्या की आंखों में तैर रहा है, या मुसलमान कम्युनिटी की आंखों में तैर रहा है। आप दीजिएगा या नहीं दीजिएगा मुझे यह जज जानेगा। मैं तो जज वकील की हैसियत से
जज साहब को केवल यह बताने के लिए आया हूँ कि जज साहब, मैंने अपने क्लाइंट की आंखों में अभी अभी यह न्याय का स्वरूप देखा है, इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, इतना मोटा है, इतना वजन है, आप इसे ही न्याय डिक्लेयर कर दो। करोगे या नहीं मुझे नहीं पता। दूसरा वकील बोलता है नहीं, ये वकील साहब गलत बोल रहे हैं, ये इसका न्याय तो मेरी वकील की आंख में जा देखिए, उसका वजन तो 2 किलो है, ये 200 ग्राम बोल रहे हैं। एक वकील को इंडिविजुअल राइट्स के लिए खड़े होने का अधिकार दिया गया है। वह निर्भया के हत्यारों के लिए भी रात में 2 बजे जबकि सारा विश्व उसके ऊपर थू थू कर रहा हो, तब भी सुप्रीम कोर्ट के जज को उठा देता है, कहता है जज साहब आपने निर्णय तो ले लिया है, प्लीज एक बार और देख न लीजिए। तो जो नए जज अभी बन रहे हैं उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी आपकी? हर जज के लिए, नया हो या पुराना, एक ही एडवाइस है कि अपनी जुडिशरी जो तुम्हारी इंस्टीट्यूशन है उसकी परंपरा में, विश्वव्यापी परंपरा में, मैंने वो आप उस जज लाइक जो परंपरा है वह मैं उसको एक पंचायत से लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक को सारे को एक स्वरूप में बंधा देखता हूँ। और मैं उतना ही कहूँगा कि इस जुडिशियल संस्था में अपना विश्वास अखंड रखना, विश्वास को हिलने मत देना। यस, कभी अपने आप पर डाउट होगा, कभी इंस्टीट्यूशन पर डाउट होगा, कभी रिसोर्सेस पर डाउट होगा, कभी एचआर जो ये तुम्हें मिले हैं उस पर डाउट होगा, कभी पब्लिक परसेप्शन पर डाउट होगा, बहुत से इफ्स एंड बट्स। पर किसके जीवन में नहीं आते हैं, किसके जीवन में नहीं आते हैं? Who is free from these doubts? Every judge who has come to serve the society must live for the society and must live like judge. Living like judge is living aloof from the society. तो जो लॉयर्स हैं कोर्ट रूम में उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी आप? Lawyers, judge is your not your master. Lawyers, don't be afraid of the judge. Don't toe the line of the judge. आपने अभी देखा अननेचुरल ऑफेंस 377 एक सेक्शन हुआ करती थी होमोसेक्सुअलिटी की। एक जज साहब ने जमकर बहस की और वह सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो है स्ट्राइक डाउन कर दिया ना। यह वकील साहब का पुण्य था, यह वकील साहब की बहस थी, यह वकील साहब की इनसाइट थी जिससे यह संभव हुआ। वकील को मैं कहूँगा और अधिक फियरलेस होकर काम करना। वकीलों ने इंग्लिश अंपायर जैसी विराट संस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, वकीलों को और आगे भी लड़ाइयां लड़नी है। वकील के लिए केवल और केवल जनता के मन में जो न्याय की परिभाषा है, न्याय का संकल्प है, उसको न्यायपालिका तक पहुंचाना उनका काम। न्यायपालिका कितना देगी कितना नहीं देगी यह निर्णय करना वकील का काम नहीं है। वकील का काम यह नहीं है कि उसके पास जो आया है वह दोषी है या निर्दोष है। यदि वकील यही कर लेगा तो फिर न्यायपालिका क्या करे? वकील का काम है जो भी उसके पास आवे उसके इंडिविजुअल राइट्स के लिए अंत तक अड़े रहना। पर अड़ना है, झगड़ना नहीं है। अड़ना है, झगड़ना नहीं है। जिस दिन कोर्ट की मर्यादा खत्म हो गई उस दिन वकील की मर्यादा खत्म। कोर्ट है तभी वकील है और वकील है तभी कोर्ट है। इसलिए मैं कभी भी वकील को जज से अलग नहीं देखना चाहता, देखता ही नहीं। और आई हैव ऑलवेज रिवॉर्डेड बाय बार। कभी भी डरना मत, न राजा से डरना, न तलवार से डरना, न गोली से डरना, न अपराधी से डरना और न जज से डरना। प्रत्येक वकील कॉन्स्टिट्यूशनल आर्मी का सैनिक है। बात समझ नहीं? प्रत्येक वकील कॉन्स्टिट्यूशनल आर्मी का सैनिक है और उसी सेना के जजेस उसी सेना के अधिकारी हैं। तो जो यंग ग्रेजुएट्स अभी पास आउट हो रहे हैं, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एंटर होंगे, किसी भी प्रोफेशनल लाइन में एंटर होंगे, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी? देखो भाई, मेरा दृढ़ विश्वास है कि इस देश में प्रोफेशनल्स ने सारी गड़बड़ मचा रखी है। इस देश में जो काले धन की समस्या बनी हुई है वह चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के द्वारा के गलतियों से बनी हुई है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो है वे किसी सेठ जी के नौकर नहीं है। दे आर आंसरेबल टू द सोसाइटी, दे आर आंसरेबल टू द शेयर होल्डर्स एंड दे आर नॉट आंसरेबल टू द डायरेक्टर्स और द चेयरमैन। यदि वो लोग फियरलेसली अपना काम करें, यदि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कलम रोक कर खड़ा हो जाए तो मजाल है कि एक भी इलीगल प्रैक्टिस, अनफेयर प्रैक्टिस हो सकेगी। उसी तरह वकीलों से भी मेरी निवेदन है कि बी फेयर। हर प्रोफेशनल से एक ही बात कहूंगा कि बी फेयर, बी नेशनलिस्ट
Do whatever you can for the national interest. You have got the sanction of law of the nation, law of the land, and that is for the betterment of the society and not for any individual. यदि आपके समक्ष कोई व्यक्ति आता है और कहता है कि वकील साहब मुझे ए नाम से बेल करवा दीजिए, और भाई तुम ए हो ही नहीं तो ए नाम से बेल कैसे हो जाएगी? मुझे ए के नाम से कंपनी खुलवा दीजिए, तो भाई ए नाम से कैसे खुलवा दूं? मुझे ए नाम से 5 करोड़ रुपया उधार दिलवा दीजिए, तुम ये हो ही नहीं तो हम कैसे दिलवा दें? तो आपको तो आप ही को दस्तखत करना है, आप कह दीजिएगा कि मैं जानता हूँ ये है, एफिडेविट आप ही ना लिखते हो कि आई नो द डिपोनेंट एंड ही इज पर्सनली नोन टू मी एंड साइन इट माय प्रेजेंस। यदि आप नेशनल इंटरेस्ट में, मैं सभी प्रोफेशनल से हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि राष्ट्र हित में अपनी उपयोगिता का उपयोग करें, अपने अधिकारिता का, अपने ज्ञान का प्रयोग करें राष्ट्र हित में। किसी अंग्रेजों के जमाने में जो प्रोफेशनल थे वे अंग्रेजों के हित के विरुद्ध कभी नहीं जाते थे। उन्होंने जो कुछ किया अंग्रेजों के हित में किया, अंग्रेजों के लिए किया। तो आप अब इंडिया के हो, क्यों नहीं इंडिया के हित के में करोगे? आप सीधे और सीधे केवल देश हित में, लॉ ऑफ द लैंड के अकॉर्डिंग, वही आपका सैंक्शन है। तो प्रत्येक प्रोफेशनल से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप राष्ट्र हित में अपने अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। तो लास्ट क्वेश्चन रहेगा भी मेरा। लास्ट क्वेश्चन, अगर मैं बोलता हूँ कि आप अपनी पूरी जीवन शैली, पूरी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को और अपने बारे में एक लाइन में अगर आपको डिफाइन करना है तो आप कैसे करेंगे अपने आप को एक लाइन में डिफाइन? मिस्टर गर्ग, मैं आपको एक गिलास ठंडा पानी पिलाऊंगा और गारंटी करता हूं कि उस गिलास का एक एक बूंद 100% शुद्ध, एक एक बूंद 100% लीगल, और आपको ऐसी कुर्सी पर बैठाऊंगा जिसका एक सूता भी टेंटेड नहीं है। कम ऑन मिस्टर गर्ग, आई विल शो कि एट द एंड ऑफ लाइफ एक संतुष्ट जज कैसा जीवन जीता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए और इतने सारे आप एक्सपीरियंस और इतनी सारी नॉलेज शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर गर्ग, थैंक यू। माय प्लेजर सर। थैंक्स फॉर वाचिंग अमेजिंग मेंटोर। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल बटन टू गेट रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच।